Namaste. I'm Dr. Mona, naturotherapist and diet consultant since last 17 years in Mumbai. Today we are going to discuss about gas, acidity and indigestion. Let's start. See, basically the reason to combine these three things are like they are correlated. When you are facing the gastric problem, there must be some indigestion inside your stomach. If you face the indigestion, there are some acid refluction inside your body. So indirectly or directly, gas, acidity and indigestion are correlated. That's the reason to choose these three different topics at a time, because these three are related, as I said. Before I start and explain, let me ask you a question. Is there a single person on the earth who has never faced the problem of gas, acidity or indigestion? I think so. Answer is no, 100%. Because these are that common problem. Each and every person in their life, at least single, they face the problem. Maybe different name, different type, different symptoms. Because according to Ayurveda, 80 different types of Vata and Pitta inside the body. You can say with the help of some science, the proper name, gastritis, IBS problem. Acidity is very common, but once it becomes more chronic and the refluction start, then you can say ulcer. So colitis again. So there are lots of names relate with these three basic problems, because as we know, the root cause of every disease are toxins which are created inside the area of our stomach. So toxins in the form of Vata, Pitta or Kapha, that you can say gas, acidity or indigestion as in general science words. So let's start in brief. Let's see what is gas. Vata. So gas means when you feel the gas, क्या होता है exactly? Blanching, flatulence, abdominal pain, bloating inside the stomach area. So these are the common things when you are facing the gastric problem. See, as we know, there are lots of gas inside our environment. But what are the types of general gas that we found inside the body is CO2, H2 and methane sometimes. So when these gases are increasing inside the body, we feel this type of symptoms. डकार आ रही है, सुस्ती लग रहा है, ड्राउजीनेस फील हो रहा है. ये सारा जब शरीर में गैस या तो वात बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है. बेसिकली गैस आता कहाँ से हमारे बॉडी में? हम गैस खाते हैं, हम गैस पीते हैं. यस, दैट्स ट्रू. कैसे? वेरी सिंपल. आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है खाने की, वो बहुत चेंज हो गई है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड, द वे वी ईट, हाउ वी ईट, हाउ वी सिट ड्यूरिंग आवर फूड ईटिंग. दीज आर सम रीजन्स. बेसिकली देखिए, जनरली खाना कैसे खाना चाहिए. ट्रेडिशनली जो हमारा इंडियन कल्चर है, क्रॉस लेग्स यानी कि पलाठी मार के, मांडी जिसे बोलते हैं, क्रॉस लेग्स पोजीशन में हमें नीचे धरती पे बैठ के अपनी थाली को अपने से आधा फुट तक ऊपर रख के, यानी कि धरती के ऊपर एक छोटा सा लकड़े की पाट रहती है जिसे हम पाटला भी बोलते हैं, 4 स्टैंड्स का बनता है वो. तो उसके ऊपर हमारी खाने की थाली रखिए और ज़मीन पे हमें बैठना है क्रॉस लेग्स लेके. दैट इज़ आवर ट्रेडिशनल रूटीन हैबिट. बट क्या चेंज हो गया है? हर घर में डाइनिंग टेबल्स आ गए हैं. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, थाली जो है वो तो ठीक है, आप टेबल पे रख देते हैं, बट आपकी बैठने की पोजीशन क्या होती है? आप चेयर पे बैठते हो तो जनरली चेयर पे हम इस तरह से बैठते हैं और हमारे पैर जो है हवा में लटका के रखते हैं और हाथ के सपोर्ट को टेबल पे रख के हम खाना खाते हैं. डू यू थिंक इट्स अ राइट हैबिट? बट क्या करें, फैशन है, आजकल तो हर घर में डाइनिंग टेबल होना ही चाहिए. दिस इज़ द पॉइंट.
हाईएस्ट गैस, एसिडिटी और स्पेसिफिकली इंडाइजेशन होने का जो रीज़न है ये दो चीज़ें हैं। वन इज़ द इंग्लिश टॉयलेट एंड इंग्लिश लाइफस्टाइल, दैट इज़ योर डाइनिंग टेबल। बहुत छोटी सी बात है ये, शायद आप मानेंगे भी नहीं, बिलीव भी नहीं करेंगे, बट इट्स अ रिसर्च, साइंटिफिकल रिसर्च आर शोइंग दिस रिजल्ट्स। क्योंकि जब हम क्रॉस लेग्स लेके बैठते, पलाठी मार के खाने पे नीचे ज़मीन पे बैठते, तो एक आप पृथ्वी तत्व, जो नेचुरोपैथी पंच महाभूतों के बेस पे चलती है, उसमें का एक है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ के आप बैठते हैं। खाना कहाँ पे ग्रो होता है? धरती से ग्रो होता है, पृथ्वी तत्व होता है, और वहीं पे आप बैठ के खाते हैं, तो आपका डाइजेशन अच्छा ही होने वाला है, पृथ्वी तत्व आपके शरीर में जा रहा है। सेकेंड बैड हैबिट, आजकल हम बातें करते हुए खाना खाते हैं, उससे भी ख़राब चीज़ है मोबाइल देखते हुए। टीवी सामने चालू है, उस पर हमारा ध्यान रहता है, आँख और कंसंट्रेशन टीवी या मोबाइल पे रहता है और मुंह में खाना जाता है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या गलत है इसमें? जी गलत है, क्योंकि आप जब भी खाना खाते हैं तो आपका संपूर्ण ध्यान, योर फुल कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑन योर फूड, so that you can enjoy your food, you can taste your food, and the most important thing, the saliva mixed properly with your food. When your complete concentration in chewing process, then only the whole saliva will mixed properly with your food. यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब भी आप खाना ध्यान से खाते हो, चबा के खाते हो, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो हमारे खाने के हर बाइट के साथ अच्छे से च्यू होके मिक्स्ड होते हैं। यानी कि फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो मुंह से शुरू होता है, वो अच्छे से शुरू हो जाता है। जितनी सलाइवा अच्छे से मुंह में मिक्स्ड हो गई है, उतना ही खाना आपने अच्छे से चबाया है और उसको आप अंदर डाल रहे हैं, सो दैट पेट का जो मैक्सिमम काम है वो आप अच्छे से चबा के पूरा कर रहे हैं। बट होता क्या है, जब हमारा ध्यान टीवी में या तो मोबाइल पे या कंप्यूटर्स पे होता है, तब सबसे मेन हमारी सलाइवा प्रॉपरली सिक्रेट होती ही नहीं है। हमें ध्यान भी नहीं होता है कि हम ओवर ईट कर रहे हैं या कम खा रहे हैं। टेस्ट भी हमारा ब्रेन वहाँ पे महसूस नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आपका ध्यान तो आपके वर्क में है, कंप्यूटर पे, टीवी पे है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर बिकमिंग इंडाइजेशन। आजकल की लाइफस्टाइल में सबसे गलत काम छोटे से लेके बड़ों तक यही हो रहा है। फिर वो शौक से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या कुछ हैवी वर्कलोड चल रहा है और खाने का टाइम नहीं और आप उसे एडजस्ट कर रहे हो। बट देख लीजिए, समझ लीजिए, इट्स अ हाई टाइम। हर एक रोग इंडाइजेशन के वजह से ही शुरू होता है। ओवर ईटिंग इज़ ऑल्सो अगेन रीज़न फॉर वेट गेन, ओबेसिटी एंड लॉट्स ऑफ मेनी डिसीज। सो गैस पे आते हैं। दो गलत हैबिट मैंने अभी आपको बताई जो इजीली आप अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं और इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी से अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गैस, जैसे मैंने बताया कि इस तरह से खाने में रॉन्ग हैबिट्स वगैरह से होता है। ये चीज़ें जो है CO2, H2 एंड मीथेन जो हम अपने खाने में लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी फेस ब्लोटिंग, डेंचिंग, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन समटाइम्स वगैरह एक इफ़ेक्ट आ जाती है जिसे हम गैस बोलते हैं। ये एक हमारी बेसिक गलती है जिसे हम सुधार सकते हैं। बेसिकली गैस अगेन ऐसी कुछ खाने की चीज़ें होती है जो आपकी प्रकृति को सूट नहीं करती है, जो आपके डाइजेशन को अलाउ नहीं करती है। ऐसे भी कोई फूड हो सकते हैं जैसे कि काफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरीज होती है, देन सम टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड सीरियल्स आर ऑल्सो देयर जो इजीली आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो रिफ्लेक्शन पे जाता है काफ़ी टाइम। उसी के वजह से पेट हैवी फील होता है, गैस फील होता है, आपको ब्लोटिंग फील होता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेजेस है, काफ़ी टाइम वाइट रेडिश होता है। बट इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपके घर में आपके भाई और बहन है तो उनको ये सूट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही खाना आपको सूट हो। इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन योर डाइजेशन, आपकी प्रकृति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मार्क कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स या तो ब्रोकली जैसे, कॉलीफ्लावर जैसे कैटेगरीज़ के कुछ वेजिटेबल्स है जो आपको नहीं सूट कर रहे, जिसको खाने के बाद ब्लैंच या तो रॉ, वट एवर यू वांट, जिसको खाने के बाद आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फील हो रही है, गैस हो रहा है शरीर में, ब्लोटिंग हो रही है, देन द मोस्ट ईजीएस्ट वे इज़ टू अवॉइड दैट थिंग। वैसे ही हम अगर पल्सेस और सीरियल्स में जाते हैं
तो किडनी बीन्स है जिसे हम राजमा बोलते हैं, वाइट मटर रहता है, उड़द की दाल भी काफ़ी टाइम किसी को हैवी फील कर सकती है, वाइट लेंटिल्स जिसे हम बोलते हैं, समटाइम्स येलो लेंटिल्स आर ऑल्सो देयर, छोले जिसे हम बोलते हैं, चिक पीस, ये सारी चीज़ें शायद आपको गैस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। अगर उसको अच्छे से चबा के नहीं खा रहे, उसकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहे हैं, उसको टाइम डाइजेशन का नहीं दे रहे हैं, देन देर इज़ अगेन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग गैस इनसाइड योर स्टमक। तो इस तरह से कुछ फूड है जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसे आपको अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे अवॉइड भी कीजिए, मत लीजिए अपने रूटीन फूड में। उसके अलावा कुछ फ्राइड पोटैटोज़ होते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको कंटिन्यूस गैस प्रॉब्लम हो रहा है तो। देन सम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो, स्पेसिफिकली आफ्टर डिनर अगर आप ले रहे हैं तो आपको सूट नहीं कर रहा है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ऐसे कई फ्रूट्स भी है, अगर आप खाने के बाद ले रहे हो तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। सो प्रॉपरली हम देख रहे हैं कि गैस इस तरह से होता है, गैस क्यों बनती है, कुछ गलत हैबिट्स होती है, कुछ फूड होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको आपकी बॉडी नेचर, आपकी प्रकृति के हिसाब से चेक करना चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू से इट इज़ नॉट सेम विथ ईच एंड एवरी पर्सन, इट मे वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप खुद को मार्क करना शुरू करते, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते, यानी कि आप अपने शरीर को सुनना समझना शुरू करते हैं, तो आप ये गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। सी वाई आई एम गिविंग द इम्पोर्टेंस फॉर दिस स्मॉल थिंग लाइक गैस। सबको होता है, काफ़ी टाइम होता है, यू नो इट्स अ निग्लिजिबल थिंग, गैस होता है, निकल जाता है। हियर वी आर रॉन्ग। It's a scientific research and very latestly it is proved also. Around more than 60% of heart attack is practically not a heart attack but just the gastric problem or the acid refluxes are there. So whenever we start feeling pain or the angina pain, so it is not every time a heart attack. More than 60% केस में गैस ही होती है, फिर वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुई, इंडाइजेशन की वजह से हुई, एसिड रिफ्लक्शन हुआ, एंड द रीज़न चलो भाई आईसीयू में डाल दो, हार्ट अटैक आ गया है। दैट्स वाई टुडेज टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गैस यानी कि वात बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही चीज़ जैसे क्रॉनिक बनती जाती है तो गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, स्टीफनेस, XYZ आप जितने नाम देना चाहते हैं डिजीज़ वाइज, ये सारे क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द वात एग्रीवेशन। एंड वात इज़ लाइक अ गैस। गैस इज़ वेरी स्मॉलेस्ट थिंग। व्हेन it started, it creates a plunging, bloating in your stomach. Be alert at that time only. कोई भी चीज़ अगर क्रॉनिक हो रही है तो उसे क्रॉनिक होने से पहले ही क्लियर कीजिए, उसे टाइम मत दीजिए क्रॉनिक होने का। तो आप गैस से लेके एंजाइना पेन या हार्ट अटैक तक को भी कॉम्बिनेशन में पकड़ सकते हैं और उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। चलिए, हो गया गैस, हो रहा है गैस। सो लाइफस्टाइल में जो हमने बात की वो तो थोड़ी चेंज कर दिया आपने। नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? नेचुरोपैथी में भी काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स है। सबसे बेस्ट है एनिमा। सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हैं या नज़दीक कोई अगर आपके यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर्स है तो आप डॉक्टर की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। बिकॉज एनिमा इज़ अ टाइप ऑफ क्लिनजिंग। जब भी गैस, एसिडिटी या तो इंडाइजेशन होता है तो द रूट कोज और द रूट ट्रीटमेंट और डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में से एक्सेस फ्री रेडिकल्स, रेसिड्यू, टॉक्सिन्स को रिमूव कर दीजिए। सो रिमूव करने का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एनिमा। सेकेंड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वार्म वाटर। कंटिन्यूसली पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा जिप टू जिप करके आप वार्म वाटर पीते रहिए, यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीते रहिए। जिससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल कैनल है हमारी, उसमें जमा हुआ जो मड रहता है, जो जमा हुआ एक रेसिड्यू रहता है जो गैस को क्रिएट करता है, जिसके वजह से गैस क्रिएट होती है, वो क्लीन होता जाएगा। इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल कि भाई हमारा जो वाटर टैप है, पानी का नल है, उसमें से पानी आ रहा है रेगुलर, बट काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि वो अटक अटक के आ रहा है, उसका जो फोर्स है, जो उसका फ्लो है वो कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम टेप चेंज कर देंगे?
नहीं, हम क्या करेंगे, वो टेप को ओपन करेंगे, रादर खुद या तो प्लम्बर को हम बुला के उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, उसकी क्लींजिंग करवाएंगे। वो टेप ओपन करेगा, उसकी जो नली रहती है, नल जो रहता है, पाइप रहती है, उसको क्लियर कर देगा, उसके अंदर जो कचरा है उसे बाहर निकालेगा, वापस टेप को फिट करेगा। वी ओपन द टैप एंड द नॉर्मल लेवल ऑफ फोर्स इज अगेन देयर। सो बेसिक क्या हुआ कि अंदर की सफाई करनी ज़रूरी है, पार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सफाई करने से ही अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वार्म वाटर। व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे? इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी थेरेपी, कोई भी साइंस आपको ईजीएस्ट वे सजेस्ट कर सकती है। एनिमा हो गया, वार्म वाटर हो गया। सेकेंड आता है हम फूड पे भी कंसंट्रेशन करते हैं, तो डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कैपेसिटी, लाइफस्टाइल और इफ़ ही और शी सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीज़, आप उनको फास्टिंग थेरेपी पे लेके जा सकते हैं। फास्टिंग थेरेपी हमने अपने बहुत पहले वीडियोस में भी पूरी शेयर की है कि फास्टिंग मीन्स नाम सुनते ही डरिए मत। फास्टिंग मीन्स खाना बंद, ऐसा नहीं होता है। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स आर देयर, यानी कि आप पानी से फास्ट करवा सकते हैं, फ्रूट से करवा सकते हैं, जूसेस से करवा सकते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। एक टाइम खाना देके यानी कि मोनो डाइट पे लाके भी फास्टिंग करवा सकते हैं। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग्स आर देयर, डिपेंड ऑन अगेन पेशेंट्स। तो आप इस तरह से फास्टिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हॉट एंड कोल्ड टब बाथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी और ठंडे पानी के टब में बिठा के आप इंटेस्टाइनल एरिया को क्लियर करवा सकते हैं। फूड बाथ रहता है, हॉट एंड कोल्ड फूड बाथ भी करवा सकते हैं। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट थेरेपीज़ इन नेचुरोपैथी जिसकी आप हेल्प लेके गैस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल कैनल को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मड थेरेपी भी रहती है। मड थेरेपी के लिए हम डीप सी मड यूज़ करते हैं। हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है उसके ऊपर हम मड एप्लीकेशन 30 मिनट्स रखते हैं एंड देन वॉश इट आउट। दिस इज़ डन ऑन एम्प्टी स्टमक ऑफ कोर्स, एंड टू डू दिस थेरेपी वी हैव टू सोक दैट मड फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours इन नॉर्मल टैप वाटर। सो इस तरह की जो थेरेपीज़ है, जो मैंने अभी आपको थेरेपीज़ बताई है, ये सिर्फ गैस प्रॉब्लम के लिए नहीं, बट कि पूरी गैस एसिडिटी की इंडाइजेशन, यानी कि हमारे पूरे बेली पार्ट यानी कि पूरे स्टमक इनर लाइनिंग्स को क्लीन करने के लिए थेरेपीज़ रहती है, और वो एक से ज़्यादा फ़ायदा आपको देके जाती है। एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। अगर ज़्यादा गैस हो रहा है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, डकार आ रही है, तो 4 चीज़ है जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती है। सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको मिक्स करके एक पाउडर बना दीजिए, और ये पाउडर का जो सेवन है 1-1 छोटा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद कीजिए। 4 ही चीज़ चाहिए हमें। पहला है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, दूसरा है अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, तीसरा है हमारा हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक, एंड चौथा है जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, अदरक का पाउडर। ये चारों चीज़ों को आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ले लेना है। एक सपोज़ 10-10 ग्राम आपने चारों चीज़ों को ले लिया, उसे मिक्स करके अच्छे से ग्लास बॉटल में भर के रख दीजिए। 1 टीस्पून छोटा सा सुबह शाम आप इसे ले लीजिए हल्के पानी के साथ, या तो सीधा ही मुंह में ले सकते हैं। ये चारों चीज़ों का मिक्सचर आपको कम से कम 20 से 25 दिन तक रेगुलर लेना है, और आपको खुद फूड में, लाइफस्टाइल में चेंज करके देखिए, गैस प्रॉब्लम आपको निकल जाएगी क्लियरली विदाउट द हेल्प ऑफ सिंगल मेडिसिन्स। सिर्फ किचन के कुछ स्पाइसेस ही आपको इसमें हेल्प कर देंगे, राइट। गैस का क्लियर हो गया, हम थोड़े से एसिडिटी के बारे में आते हैं। सो बेसिकली एसिडिटी इज़ वेरी कॉमन वर्ड, बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली एसिड रिफ्लक्शन? क्यों होती है एसिडिटी? क्या क्या होता है एसिडिटी में? आपने सुना होगा, सब लोगों को एसिडिटी की बात करते हैं, पर हर एक के सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं। यस, क्योंकि एज आई जस्ट अर्लियर टोल्ड यू, देयर आर 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पित्त इन आवर बॉडी। पित्त यानी कि एसिडिटी। जनरली हमारी बॉडी में भी हमारा पीएच लेवल मेंटेन रखना चाहिए। एसिडिट्स टू अल्कलाइन ऑलवेज मेंटेनेंस होना चाहिए। जब तक ये आपका मेंटेनेंस पीएच लेवल का होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और कम से कम डिजीज़ को आप फेस करते हो। तो एसिडिटी हम किसे बोलते हैं? बेसिकली क्या होता है, सिम्टोमेटिक्स देखते हैं। सो एसिडिटी में होता क्या है? जनरल सिम्टम्स जो लोगों को एटलीस्ट पता चलता है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन स्टमक में होता है,
गले के यहाँ जो फूड पाइप्स है वहाँ पे हो सकता है, पैर के तलियों में हो सकता है, पाम्स में हो सकता है, हथेलियों में हो सकता है, कहीं भी आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसके बाद होता है ओवरहेड। कितने भी एसी चल रहा है फिर भी आपको लगता है कि गर्मी है, आपको इंटरनल हीट फील होती है, आपकी बॉडी गर्म रहती है। हेडेक, अगेन ड्यू टू हाइपर एसिडिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट हमें हेडेक फील होने लगता है। इसके अलावा माइग्रेन, जब हेडेक कंटिन्यूस फील होता है, जब हेडेक हम बोलेंगे एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेन। सीवियरिटी ऑफ हेडेक इज कॉल्ड द माइग्रेन, क्योंकि उसके अटैक्स आ जाते हैं आपको, और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, मिनट्स, घंटों के लिए नहीं होते। इट मे बी लॉन्ग टिल 2 or 3 days also, and you have to be totally shift on to the medications like Vertine or some type of medicines जो रहती है, you have to take some kind of help initially। इसके बाद आता है वेरिकोज वेन्स। जनरली देखिए हम बोलते हैं कि भाई जो सेल्स वुमेंस या मेन है, जो टीचर्स के प्रोफेशन में है, जिनको काफ़ी टाइम ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, उनके पैरों पे ज़्यादा वजन आता है, ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स्ड होता है, तभी अग्रीड, दैट इज़ द रीज़न। बट द रूट कोज फॉर दिस प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स आर अगेन एसिड, एक्सेसिव एसिड इनसाइड योर बॉडी। यस, अल्सर्स वेरी कॉमन, माउथ अल्सर्स, स्टमक अल्सर्स, काफ़ी टाइप के अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स यानी कि कई एक तरह के छाले पड़ना। इन्फ्लेम्ड हो जाता है हमारा इंटेस्टाइनल कैनल, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है स्टमक लाइनिंग्स पे, राइट। समटाइम्स विटामिन डेफिशिएंसी, बेसिकली देखिए हमारी बॉडी अल्कलाइन लेवल पे ज़्यादा अच्छी रहती है, जहाँ पे अच्छे से अल्कलाइन है और जहाँ पे हमारा प्रोटीन इंटेक अगर मेंटेन है फूड में, वहाँ पे हमारे हार्मोन्स की जो सिक्रीशंस है वो बहुत ही अच्छे से चलती है। बट जब यही चीज़ एसिड रिफ्लक्स, एसिड में कन्वर्ट होने जाती है, तब होता क्या है कि जो नेसेसरी हार्मोन्स या नेसेसरी विटामिन्स हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने चाहिए वो नहीं कर पाती है, और तभी हमारी बॉडी में काइंड ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी भी क्रिएट होने लगती है। ब्लर विजन इज ऑल्सो ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। हेयर फॉल वेरी कॉमन नाउअडेज। स्ट्रेस तो रहता है, पोल्यूशन है, इसके साथ साथ शरीर के अंदर एसिड भी ज़्यादा है, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल सडनली स्टार्ट हो जाता है। पाइल्स, ऑफ कोर्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, खाना पच ही नहीं रहा है, स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है, अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन्स और रेसिड्यू जमा ही होते जा रहे हैं, देन पाइल्स तो होने वाला ही है आपको। हार्ट बर्न, अगेन एज आई जस्ट एक्सप्लेन इन गैस प्रॉब्लम के जब भी गैस बढ़ जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, एंड वी फील लाइक इट्स एंजाइना पेन, जस्ट लाइक दैट हार्ट बर्न इज ऑल्सो ड्यू टू एसिडिक रिएक्शन, हाइपर एसिडिटी इनसाइड योर ब्लड। बिकॉज एसिडिटी ब्लड में जब मिक्स हो जाती है, जो एसिड ब्लड का बढ़ जाता है, ब्लड में एसिड लेवल बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी, तब ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट दीज आर द थिंग्स जिसे हम जनरली फेस करते हैं, जो हमें पता चलता है। तो एटलीस्ट वी मस्ट नो द रूट कोज ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो दैट वी कैन चेंज आवर फूड, वी कैन चेंज आवर लाइफ स्टाइल, और काफ़ी सारी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो आपने देखा, हम बोलते हैं जनरली एसिडिटी ऑन, क्या एक सॉरी जस्ट फॉरगेट, देयर इज इनो ऑन, एसिडिटी गॉन, ये चलता रहता है ना ऐड। जेल्यूसिल है, पेंटोसिड्स की काफ़ी गोलियां है, एंड ये सारी चीज़ें ठीक है, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट कभी आपको हाइपर हो गया, कभी हेल्प लेनी पड़ी और आप लोग ने ये चीज़ें ली, दैट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, बट इट डजेंट मीन कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो पॉकेट में जैसे रखते हैं ना चॉकलेट्स वगैरह, वैसे लोग रखते हैं पेंटोसिड्स की टैबलेट, फ्रीज में जेलूसिल्स की बॉटल पड़ी रहती है, जब भी हुआ खाना तो खाना ही है, टेस्ट तो आना चाहिए, पर क्या करें, हैवी लगता है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, खाना खाया और वो डकार दी, 2 बोतल, 1 बोतल, 2 चम्मच, 4 चम्मच, व्हाटएवर, या तो वही जो मैंने जिंगल बोला आपको, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन, बिकॉज क्यों, ईजीएस्ट वे है, टेस्टी है, एक ग्लास पानी लिया, इनो डाला, पी लिया, हो गया रिलीफ। काफ़ी टाइम एरेटेड ड्रिंक्स ही लोग लेते हैं, सो मेनी सोडाज एंड रिलेटेड ड्रिंक्स,
बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा रिलीफ देके बहुत सारा इंटरनल डैमेज क्रिएट करती है ये सारी चीज़ें, अगर ये आप रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं तो संभलिए। देखिए, हम भी समझते हैं कि फूड हैबिट चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना इज़ नॉट दैट ईजी compared to mug up all these things, but it's your health, it's your stomach, it's your body। क्यों परेशान कर रहे, क्यों उसे ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं? थोड़े से तो चेंज करने की ज़रूरत है हमें, और वो भी जो हमारे हाथ में है, जो हम ईजीएस्ट वे से कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हो गया इंटेस्टाइनल कैनल पे, स्टमक लाइनिंग पे इन्फ्लेमेशन हो गया, क्यों होता है? जब ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और वो स्ट्रेस को डाइवर्जन मिलता नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, जब आपको पूरा रेस्ट या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है तभी हेडेक होता है, आंखों के नीचे कालापन बढ़ जाता है, पफी आइज्ड हो जाती है, फिर हम सोचने लगते क्या हो गया, डॉक्टर्स के पास जाते, काफ़ी सारे टेस्ट में पैसे डालते हैं, एंड द रिजल्ट ज़ीरो। एसिडिटी कोई टेस्ट में नहीं दिखने वाली है आपको। पफीनेस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रेटिनाइन लेवल या किडनी फंक्शन पे ही डैमेज हो रहा है। जब भी रिजल्ट ज़ीरो आता है तो क्या होता है, अरे यार है क्या, आखिर सब टेस्ट करवा लिए, सब अच्छा है, फिर क्यों तकलीफ़ हो रही है? तो भी नेगेटिव, तो भी टेंशन आ गया। रिलैक्स, जो चीज़ें आपके हाथ में है बस उसे क्लियर कीजिए। एसिडिटी है, ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं? डिसीज़ के तो लिस्ट बहुत बड़े हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एसिडिटी है ना, यानी कि गैस, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन, राइट? क्लियर कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड। अगर स्पेसिफिकली हम एसिडिटी की बात करें तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए मड थेरेपी तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। अलॉन्ग विथ दैट इस तरह के ज़्यादा फाइबर और अल्कलाइन फ्रूट्स और सैलड्स, वेजिटेबल्स अपने इंटेक में बढ़ा दीजिए सो दैट एसिड कम हो जाए। सी इट्स वेरी सिंपल, एसिड बढ़ रहा है, अल्कलाइन लो हो रहा है, दैट मीन्स एसिडिटी फील हो रही है। मेक इट बैलेंस, अल्कलाइन लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एसिड अपने आप कम हो जाएगा। सो अल्कलाइन, हाईएस्ट अल्कलाइन फूड ऑन अर्थ, you know what? All raw things that you can easily eat. That means all fresh seasonal and regional fruits, all fresh vegetables or the juices of vegetables. If you have some indigestion problem, then go for soup also. Black raisins soaked overnight and chew in the morning. Raw सौंफ यानी कि fennel seeds, बड़ी सौंफ, कच्ची सौंफ चबाइए, जस्ट च्यू इट, और ड्रिंक जैगरी लेमन वाटर। नाउ इट्स अ सीजन ऑफ रॉ मैंगो, देन मेक अ जूस ऑफ रॉ मैंगो, और जिससे हम ईजीएस्ट वे से अलग तरीके से आम पन्ना बोलते हैं, विथ जैगरी, नॉट द शुगर, बिकॉज शुगर एनिमी ऑफ एसिड एंड जैगरी इज़ अ फ्रेंड। सो इस तरह से अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाइए, फाइबर इंटेक बढ़ाइए, अपना कुक फूड को कम कर दीजिए, पेट भरने के लिए फाइबर को बढ़ा दीजिए, जिसमें से अल्कलाइन, न्यूट्रिशन दोनों चीज़ आपको मिल जाती है। इसके अलावा भी जो होता है, अगर जैसे मैंने बात की कि विटामिन डेफिशिएंसी, अगर आपकी विटामिन डेफिशिएंसी चल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन एसिडिटी हो सकती है, तो विटामिन सप्लीमेंट्स लेके उसे रिकवर कीजिए। नींद पूरी नहीं हो रही है तो टेक प्रॉपर रेस्ट। स्ट्रेस है उसे डाइवर्ट कीजिए। सबसे बेस्ट, आउट ऑफ 24 आवर्स 24 मिनट्स निकालिए अपने आप के लिए, सो दैट यू कैन डू डीप ब्रीथ, यानी कि प्राणायाम। हमारा जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ दो चीज़ खाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दो चीज़ दे दो, फटाफट भागने लगेगा। और आजकल ब्रेन का ही काम तो ज़्यादा बढ़ गया है, फिजिकल वर्क तो कम हो गया है। सो कहाँ से मिलता है ग्लूकोज? हम जो खाते हैं, वो जो ब्लड बनता है, ब्लड में से वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है और उसी ब्लड में से वो O2 को एब्जॉर्ब करता है। बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ क्वाइट इनफ। उसके लिए आपको आधा घंटा डेली डीप ब्रीथ करने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन
get the proper level of oxygen in your body. You can absorb the proper oxygen from the environment, and that is also in a pure form, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना. So deep breathing is the good and the best therapy if you want to cure your hyperacidity. इसके अलावा बात करते हैं तो जो टेंडर कोकोनट वाटर, शुगर कैन जूस, ये सारे ये सीज़न में भी अवेलेबल है. जो समर सीज़न हम बोलते हैं, मैंगो की सीज़न बोलते हैं, और तभी हीट ज़्यादा रहती है क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर तभी आप धूप में ज़्यादा जाते हैं तो हेडेक होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं. डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक बॉडी है, पानी फ्लूइड कम गया है, तो ज़्यादा हाइपर एसिड होने के और एसिड रिफ्लक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो टेंडर कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, these are again some handy things that you can carry, you can buy and you can have it easily. मेहनत नहीं है इसमें ज़्यादा. इसके अलावा जीरा पानी है, सौंफ का पानी है, होल कोरिएंडर सीड्स का पानी है, ये सारे होममेड थेरेपीज़ है. सी, नेचुरोपैथी is basically nothing but whatever the nature provide to us and we use it. तो ये जो सारे हम आपको हैंडी जो नुस्खे बता रहे हैं, ये सारे हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है. हर एक के किचन में जीरा रहता है, सौंफ रहती है, धनिया रहता है. इसी को यूज़ कीजिए एज एन मेडिसिन. एक्चुअली दिस आर सम न्यू इन्वेंशंस which is created inside your kitchen only, and you have become the doctor. You can solve your problem on your own. Why not? और फिर भी आपको ऐसा लगता है नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छा नॉलेज मिल रहा है हमें तो डॉक्टर खुद का भी बनना चाहिए और सोसाइटी को भी बेनिफिट देना चाहिए. वेलकम टू सैफरन, बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो वेयर वी टीच, वेयर वी मेक यू टू बिकम अ ओन डॉक्टर with the help of some diploma courses, bachelor courses, masters and up to the PhD. We are here to help you. Okay. As I just explain you some homemade powder for gas, again I am going to say some mixture which helps you to balance your acid also. Again that you have to consume 1 teaspoon twice a day after your food. So उसमें क्या रहेगा, सब इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा. सतावरी चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, रॉ शुगर, सुत्त शेखर पाउडर, ये चारों चीज़ों को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लीजिए. पाउडर के फॉर्म में बना के एक ग्लास की बॉटल में मिक्स करके रख दीजिए और आप इसे एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं. ये आपकी होममेड थेरेपी हो जाती है. ये कुछ ऐसे पाउडर्स है जो आपको नज़दीक कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में भी मिल जाएंगे, या आप अभी तो ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ों को मंगा सकते हैं. और थर्ड थिंग इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन सिंपल, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जो खाते पचता ही नहीं है, या तो डकार आती है, पेट में जलन होती है, या तो लूज मोशन हो जाता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या तो पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं. जी हाँ, सही है, यही तो है इंडाइजेशन. कोई बड़ा साइंटिफिक वर्ड नहीं है ये, पर डिस्पेप्सिया जैसे बोलते हैं, जिसमें स्टमक पेन हो सकता है आपको क्योंकि आपका स्टमक क्लियर ही नहीं हुआ. यू आर कॉन्स्टिपेटेड फ्रॉम लास्ट सो मेनी टाइम्स और डेज और वीक, डोंट नो. एपेटाइट लो हो जाता है आपका इंडाइजेशन में. रीज़न, इंडाइजेशन चल रहा है, भूख तो लगी, खाया भी हमने, पर वो अंदर सड़ रहा है, खाना पचा ही नहीं है, तो दूसरा खाना खाने की इच्छा ही नहीं होने वाली है. बिकॉज ऑफ दैट वेट लॉस होने वाला है, डेफिशिएंसीज बॉडी में क्रिएट होने वाली है, विच वी कैन से लो एपेटाइट. भूख नहीं लग रही है, खाने का मूड नहीं हो रहा है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है. एसिड रिफ्लक्शन, जस्ट वी डिस्कस्ड. इन द मेजर थिंग ओवर हियर इज कॉन्स्टिपेशन. यस, हमारे में कहावत है, पेट साफ तो रोग माफ. एक्चुअली ये सब लोगों के लिए है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि
अगर आपका स्टमक अच्छा है, भूख अच्छे से लग रही है, खाना अच्छे से पच रहा है, पचने के बाद उसका बाइफर्केशन अच्छे से हो रहा है, यानी कि रेसिड्यू अपनी जगह, न्यूट्रिशन अपनी जगह, एब्जॉर्प्शन अपनी जगह, तो डिस्टर्बेंस लाइफ में आ ही नहीं रहा है, आप खुश हैं। और जब आप खुश हैं, सेरोटोनिन आपके अच्छे से बन रहे हैं, जितने आप खुश हैं आपकी पूरी सिस्टम बॉडी की अच्छे से काम कर रही है, डैमेज होने का सवाल ही कहाँ पे है। खुश है तो नींद भी अच्छे से आ रही है आपको, यानी कि आप रेस्ट भी अच्छे से ले रहे हैं, स्ट्रेस नहीं है आपके ऊपर ज़्यादा, और है तो आप उसको स्माइल दे के हटा रहे हैं। घूम फिर के बात कहाँ पे आई? स्टमक पे। और आप देखिए हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स यही एरिया में है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा स्टमक, लीवर, सो मेनी, जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। लीवर इज़ लाइक केमिकल फैक्ट्री टू आवर बॉडी, राइट। काफ़ी सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस है, काफ़ी सारे ऐसे बाइल सिक्रीशंस है जो सारे लीवर के थ्रू होते हैं, ये भी हमारा यही गड्ढे में ही है। तो इसीलिए स्टमक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और स्टमक को क्लीन रखना, स्टमक को हेल्दी रखना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब स्टमक लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक लाइनिंग में इन्फेक्शन के अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। फिर उसको आप XYZ ABCD जो साइंटिफिक नाम देना चाहे, दे आर लाइक डिजीज़। So if you want to stay disease free, first thing is to clean your stomach. Clean whatever the toxins inside the body first. So detoxification. Indigestion में अगर हम कॉम्बिनेशन में ही चल रहे हैं तो जो मैंने बताया, दिस इज़ कॉल्ड द इंडाइजेशन। फिर आप उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के डिसीज़ वाले, IBS वाले डिसीज़ के नाम से भी काउंट कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which happen, which occur inside the body due to indigestion. खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट होना ही चाहिए, सिंपल नॉलेज, सिंपल थिंग है। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो खाने को अवॉइड कीजिए। यूज प्री डाइजेस्टिव फूड। क्या है ये? प्री डाइजेस्टिव फूड मीन्स द फूड which are already pre-digestive or which will take less time to digest. They are all natural fruits and vegetables, nuts and dried fruits. To them we no need to cook, no need to prepare. They are called pre-digestive food. So if you are suffering from indigestion, improve your digestion with the help of this type of pre-digestive food. There are no specific therapy which will help you to cure your indigestion. The only thing is rest, food, lifestyle, and be happy.